Dear students, now we will understand this numerical and know how the accounting equation is drafted. Please note that accounting equation once again is basic, that assets are equal to liabilities plus capital. While solving the question of accounting equation, I request you that you solve this question in horizontal form in your registers or notebooks, because you may have to draft the number of columns. So it is far better that you should have in a horizontal form in your register or in your notebook. Again, come across that every transaction has the dual aspect. What means that every business transaction has the two aspects, and both the aspects must be recorded in the books of account. And every single equation proves both the sides, that is, assets must be equal to liabilities plus capital. Now starts with this question. Sandeep started business with cash. Now we will simultaneously understand this also, that what are the two aspects of this transaction. Now Sandeep started business with cash. As you know that we are drafting the accounting equation of the business or from the business point of view. So with this transaction, what will happen? That there will be inflow of the cash in the business to the extent of rupees 1 lakh, and business has also the liability of rupees 1 lakh, because it has to pay rupees 1 lakh or it has to return rupees 1 lakh to Sandeep. So it is the liability of the business to return or repay rupees 1 lakh to Mr. Sandeep. So how we will show this transaction? In the asset side, we will open one account known as cash account, and in the liability side, along with the capital, under the capital we will write rupees 1 lakh. In reference to the accounting equation for this transaction, in the asset side, see rupees 1 lakh being debited or 1 lakh being added, and in the liability side we had written 1 lakh in the capital heading. At the top we had written the accounting equation, that is, assets must be equal to liabilities plus capital. Second transaction is purchases furniture for cash. Two aspects is there, that cash outflows or cash reduces, cash decreases from the business, and furniture is an asset, it is added. तो हम क्या करेंगे, एसेट साइड में ही कैश में से माइनस कर देंगे 5000 और फर्नीचर में प्लस कर देंगे. प्लीज चेक इट डाउन. दो एस्पेक्ट कौन से हुए, कैश चला गया, कम हो गया, और एसेट में एक एडिशनल एसेट फर्नीचर वो ऐड हो गई. तो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन को दिखाना कैसे है, पहले ट्रांजेक्शन किया, उसके बाद लिखा न्यू इक्वेशन. न्यू इक्वेशन कौन सी बनी है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन किया. सी दिस, व्हाट इज हैपनिंग with this, that 5000 being reduced here from the cash, and second thing what is going on, that furniture being added to this. यहाँ पर आप नोट करें, देखिए फर्नीचर में ऐड हो गया 5000, कैश में से कम हो गया, और लाइबिलिटी वाली साइड पर इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ, और एसेट साइड पर इसका इफेक्ट जीरो हो गया. 5000 कैश में से कम हो गए और 5000 फर्नीचर में ऐड हो गए, तो दोनों प्लस माइनस जीरो हो गया, और लाइबिलिटी वाली साइड में भी जीरो है, कोई इफेक्ट नहीं है. देन कम टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेजेस गुड्स फॉर कैश. तो इसके दो एस्पेक्ट क्या हुए, कैश कम हो गया और स्टॉक या परचेजेस या गुड्स ऐड हो गए. चेक करें थर्ड ट्रांजेक्शन, हमारे पास बड़ा इजी 20,000 कैश में से कम हो गया, और स्टॉक या इन्वेंट्री या गुड्स में हमने 20,000 प्लस कर दिया. लाइबिलिटी साइड पर इसका कोई इफेक्ट नहीं है. इन दोनों साइड आइटम्स का इफेक्ट देखिए, एसेट साइड में it is 0. 20,000 being deducted from cash as it is paid, and stock is added with rupees 20,000 as it comes in. So the effect will be nil in the asset side. Likewise in the liabilities and capital side, effect is 0. So purchases goods for cash minus 20,000 from cash plus 20,000 in the stock. Next transaction, purchases goods on credit 36,000. Now what it means by purchases goods on credit means that we had purchased the goods on credit, that is how that the payment is made later on. Credit मतलब उधार में परचेज किया. तो दो एस्पेक्ट क्या हुए, ध्यान से समझिए. एक एस्पेक्ट तो ये हुआ
कि हमारे पास स्टॉक इंक्रीज हो गया एसेट साइड में, हमने प्लस कर दिया, ये देखिए 36,000। सेकंड एस्पेक्ट क्या हुआ, दैट आवर लाइबिलिटी इंक्रीजेस, दैट वी हैव टू पे 36,000 टू whom, to the creditors. Creditors are those parties to whom business has to pay on account of purchase of goods or services on credit. चेक करें इस इक्वेशन का, इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट नलीफाइड हो गया। 36,000 एसेट साइड में प्लस हो गए और 36,000 लाइबिलिटी साइड में प्लस हो गए क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर। तो दोनों इक्वल साइड हो गई, 36,000 एसेट साइड वाला और 36,000 लाइबिलिटी साइड वाला। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज पेड फॉर रेंट। रेंट मीन्स बिजनेस रेंट 700। सो रेंट इज एन एक्सपेंस। तो एक चीज क्या हो गई कि पेड रेंट में से कैश कम हो गया, सीधे 700 बीइंग रिड्यूस फ्रॉम द कैश इन द एसेट साइड। दूसरी साइड में ये 700 से हमारी कैपिटल कम हो गई। प्लीज कीप इन माइंड दैट ऑल द एक्सपेंसेस एंड इनकम्स वंस मस्ट बी डिडक्टेड और एडेड इन द कैपिटल। अगर मान लीजिए कोई एक्सपेंस पे किया, जैसे पेड फॉर रेंट, कमीशन, बोनस, सैलरी, ट्रेवलिंग कमीशन, एडवर्टीजमेंट, दीज ऑल आर एक्सपेंसेस, तो इससे क्या होगा, हमारी कैपिटल कम हो जाएगी। लाइकवाइज इफ वी से रिसीव्ड इंटरेस्ट, रिसीव्ड रेंट, रिसीव्ड मिसलेनियस इनकम, तो वहां पर हमने कैपिटल में प्लस करना है। सी हेयर, रेंट पेड, हमारे एक्सपेंसेस पे हो गए, तो हमने क्या किया, एक बार तो यहां से माइनस करके दिखा दिया कैश में से। सेकंड साइड वी हैड आल्सो रिड्यूस फ्रॉम द कैपिटल, तो कैपिटल में से भी 700 हमारे कम हो गए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 sold at a price of 20% for cash. Here it is sold at a profit of 20% for cash. Again, understand the transaction. Goods costing ₹40,000 sold at a profit of 20% for cash. तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो गुड्स है उनकी कॉस्ट तो 40,000 है, हमें इसका सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस कैसे है, सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, हमने 20% के प्रॉफिट पर सेल किया है, तो ऑटोमेटिकली वी हैव टू कैलकुलेट 20% ऑफ 40,000, दैट कम्स आउट 8,000। सो द सेलिंग प्राइस इज 48,000। 40,000 कॉस्ट प्राइस, 8,000 प्रॉफिट, तो ऑटोमेटिकली सेलिंग प्राइस इज 48,000। हाउ दे हैव बीन सोल्ड, दे हैव बीन सोल्ड फॉर कैश। तब इसका इफेक्ट क्या है, ध्यान से समझिए। जो हमारा स्टॉक है उसमें से 40,000 माइनस होंगे एज कॉस्ट प्राइस। हेयर 40,000 बीइंग रिड्यूस फ्रॉम द स्टॉक, स्टॉक में से 40,000 हमने माइनस कर दिए। आवर कैश विल इंक्रीज बिकॉज दीज आर दी कैश सेल्स, बट कैश विल इंक्रीज बाय हाउ मच, बाय 48,000। व्हाई 48,000, 40,000 is the cost and 8,000 is the amount of profit. So selling price is 48,000. So cash will be added by 48,000. Now 8,000 is the amount of profit, that is 20% of 48,000. That will be added in the capital. So result will be there that in the asset side we have a net 8,000 plus, because 48,000 of plus in cash, 40,000 minus of stock. So 8,000 in the asset side is plus. Likewise 8,000 in the liability side is plus, because in the liability side we have to take the aggregate of liabilities plus capital. So here the equation is satisfied. 8,000 plus in the asset side, 8,000 plus in the capital. All the profit, losses, incomes, expenditure, gains, they should be once must be adjusted to the capital. मैंने आपको जब एक ट्रांजेक्शन ये कराया था पेड फॉर रेंट 700, आई ऑल्सो शेयर विद यू कि जितना भी आपके पास वर्किंग होगी उसको आपने एक्सपेंसेस, इनकम, लॉसेस को एक बार कैपिटल में एडजस्ट जरूर करना है। वंस अगेन आप दोबारा से पूरा क्वेश्चन समझ ले। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, दो एस्पेक्ट हुए, कैश आ गया और कैपिटल आ गई। हमने लाइबिलिटी साइड में प्लस कर लिया, इधर कैश में प्लस कर लिया। उसके बाद 1 लाख ये रिवाइज न्यू इक्वेशन है, हमने उसी को नीचे लिख दिया। सेकंड ट्रांजैक्शन है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। हमारा क्या एस्पेक्ट हुए, फर्नीचर हमारी एसेट है वो प्लस हो गया और कैश माइनस हो गया। हमने कैश में से माइनस किया, फर्नीचर में प्लस किया।
नील इफेक्ट इन द लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। रिजल्ट क्या हुआ कि ये जीरो हो गया इधर का इफेक्ट, कैश में से -5000, फर्नीचर में 5000 प्लस, इफेक्ट इज जीरो नील, लाइकवाइज इन द लाइबिलिटी साइड इट इज नील। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स परचेज किए कैश में, तो 20,000 की परचेजेस की थी, कैश में से माइनस हो गए 20,000 और इधर स्टॉक में 20,000 प्लस हो गए, तो इफेक्ट नील हो गया, -20 + 20 एंड देयर इज नो रिकॉर्डिंग इन द लायबिलिटी साइड, इसका इफेक्ट यहाँ पर नील है और यहाँ पर भी ये नील हो गया। देन दिस इज द रिवाइज्ड इक्वेशन 75, इनको एडजस्ट करके रिवाइज 75, 5,000, 20,000 और इधर 1 लाख, इधर 1 लाख बन गया, इधर भी 1 लाख बन गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ही परचेज गुड्स और क्रेडिट, उधार पे गुड्स परचेज किए तो स्टॉक बढ़ गया 36,000 का और क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटीज क्योंकि अब हमने पे करना है ये भी इंक्रीज हो गए, दोनों साइड का इफेक्ट नील, 36,000 इधर प्लस 36,000 इधर प्लस, तो दोनों साइड का इफेक्ट नलिफाइड, इक्वेशन इज बैलेंस्ड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज रेंट पेड, हमने 700 कैश में से कम कर दिया एज एन एक्सपेंसेस और 700 कैपिटल में से माइनस हो गया। याद रखें, ऑल द एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट, गेन्स, लॉसेस once must be adjusted in the capital and otherwise to the cash or the non-cash depending upon the statement। तो हमने पे कर दिया कैश में तो ऑटोमेटिकली कैश में से माइनस किया, एक्सपेंस है हमारा, और इधर कैपिटल में से माइनस किया। इफ द ट्रांजैक्शन इज इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो यहाँ पर हम कैश में एक बार प्लस करते और एक बार कैपिटल में प्लस करते। लास्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर कैश, तो 40,000 कॉस्ट प्राइस था, 20% इसका प्रॉफिट कैलकुलेट किया 8,000, सेलिंग प्राइस कम्स टू 48,000, तो हमने कैश में सेल की, सो आवर कैश इंक्रीज बाय 48,000, हमारा स्टॉक कम हुआ कॉस्ट प्राइस से 40,000 से, एज द कॉस्ट इज 40,000, हमारी कैपिटल इंक्रीज हो गई 8,000 से बिकॉज इट इज ऑफ प्रॉफिट। और उसके बाद हमने इन सारे ट्रांजेक्शन्स को म्यूचुअली एडजस्ट करना है। म्यूचुअली मतलब जो प्लस वाली आइटम है वो प्लस करके, जो माइनस की आइटम है वो माइनस करनी है। हेयर हम कैश कॉलम का करते हैं तो इट कम्स टू 1,22,300, फर्नीचर का किया तो 5,000, स्टॉक का किया तो 16,000। सो इफ यू एड टू ऑल दिस you would find 1,43,300, 16 plus 5 plus 122, it amounts to 143, 1,43,300। ये इस साइड का टोटल आ गया एसेट साइड का। लाइबिलिटी साइड में चेक करेंगे, क्रेडिटर्स के कॉलम का नेट बैलेंस आया 36,000, कैपिटल का नेट बैलेंस आया 1,07,300, it also 1,43,300। So this way our accounting equation be improved that assets must be equal to liabilities plus capital. I would continue in my next video for the other important numerical.